the question number 4. Number 1. Explain flowcharts. You have to explain about flowcharts. The answer is on page number 6 of your textbook. So open page number 6. At page number 6, here is the answer. Definition. A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. Flowchart हमारे पास क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फ्लोचार्ट यूज़ करते हैं. फ्लोचार्ट में क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट तरह के सिम्बल्स यूज़ करते हैं. सिम्बल्स को क्या करता है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि हर सिम्बल्स का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है. जैसे ओवल यूज़ करते हैं आप स्टार्ट और स्टॉप के लिए, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं आप प्रोसेसिंग के लिए. Now moving towards question number 2, explain problem solving steps. The answer is on page number 2, 3 and 4. At page number 2, there are problem solving steps. The first step is defining a problem. Next step is on page number 3, understanding a problem. Third step is on page number 4, planning a solution. And at page number 6, selecting the best solution. These are the 4 steps in problem solving. Now here we are at question number 3. Explain the role of algorithm in problem solving. The answer is on page number 16 of your textbook. Open page number 16. At page number 16, here is the answer. Role of algorithm in problem solving. An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. It is a complete description of the solution. Usually a computer programmer first writes an algorithm and then translates it into the code of some programming language. आपके पास एल्गोरिथम का क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एक एल्गोरिथम ड्रॉ करता है. एल्गोरिथम उसके जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं वो सारे सामने आ जाते हैं और साथ ही उसकी रिक्वायरमेंट्स भी इस तरीके से प्रोग्राम बनाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है. Now moving towards question number 4. Explain efficiency of algorithm. The answer is on page number 21 of your textbook. At page number 21, here is efficiency of algorithm. Efficiency of an algorithm is measured on the basis of 2 matrices: number of steps, space used in computer memory. एक एल्गोरिथम उसी टाइम ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है जब उसमें ये 2 क्वालिटीज़ हों. एक तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और दूसरा स्पेस कम यूज़ करा हो कंप्यूटर मेमोरी में. जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसी तरह एल्गोरिथम बनाने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. लेकिन उसी एल्गोरिथम को ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है जिसमें स्टेप कम हो. सपोज करें एक एल्गोरिथम में एक पर्सन ने बनाया है जिसमें 10 स्टेप्स हैं, दूसरे ने वही बनाया है जिसमें 5 स्टेप्स हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंट वो एल्गोरिथम होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो. सेकंड, यूज स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी. ऑटोमेटिकली जब नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी में कम स्पेस लेगा. Now here we are at question number 5. Explain advantages and disadvantages of flowchart. The answer is on page number 23. Open page number 23 of your textbook. At page number 23, here are some advantages of flowchart. Easy to draw, easy to understand problem solving, easy to identify errors, easy to observe flow from one step to another. The disadvantages are: more time is required to draw a flowchart, modifying a flowchart is not easy every time, and it is not suitable for large problems. यहाँ पर अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस क्या हैं, ईजी टू ड्रॉ होता है. एक दफ़ा आपने सिम्बल्स को अच्छे से रिमेमोराइज कर लिया तो आपके लिए फ्लोचार्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी है. ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक नेचुरल सी बात है. जो चीज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में की जाए वो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होती है. एल्गोरिथम में जहाँ आपको एक लार्ज एल्गोरिथम हो सकता है उसकी रीडिंग करनी पड़े, वहीं पे अगर आप फ्लो चार्ट को एक नज़र देखेंगे तो आपको क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आपके लिए. एक ही दफ़ा में आपको बात समझ आ जाएगी कि ये किस चीज़ का फ्लो चार्ट है, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, कहाँ इनपुट हो रहा है, कहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट क्या आ रहा है. ईजी टू आइडेंटिफाई एरर, अगर इसमें है कोई एरर तो क्या है वो ईजीली मिल जाएगा. ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. फ्लो चार्ट में हम फ्लो लाइन्स यूज़ करते हैं जो हमें ईजीली बताती हैं कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पर जा रहा है. डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आए तो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट. ऑफ कोर्स शेप्स वगैरह सिंबल्स ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम. अगर आपने थोड़ी सी चेंजमेंट करनी है फ्लो चार्ट में तो आपके लिए उसे मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स. अगर कोई लार्ज प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा लंबा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, तो ये इसका